25 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਤੇ? ਬੋਲੀਏ। ਉਦਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਦਣ ਸਟਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਦਣ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਰਵਾਹਾ ਤੇ ਭੇਡ। ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਕੀ? ਚਰਵਾਹਾ ਤੇ ਭੇਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ? ਚਰਵਾਹੇ ਵੀ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਚਰਵਾਹੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਉਨੀਆਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਚਰਵਾਹੇ ਬਿਜ਼ੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹੋ। ਤੇ ਚਰਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ। ਭੇਡ ਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਚਰਵਾਹੇ ਦੇਖ ਪਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਚਰਵਾਹੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਚਰਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਹਿਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਓਰੀਜਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਜੀ? ਰਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੇਡ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ। ਰਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਡ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ। ਤੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੌਣ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸੌਣ। ਸੌਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਉਹ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜੀਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਵਾਹੇ ਤੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਰਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਵਾਹੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭੇਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਭੇਡ ਨੇ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਰਵਾਹਾ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਪਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਗੀ, ਚਰਵਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੇਡ ਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭੇਡ ਖੋ ਗਈ ਤੇ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ हाँ जी लिखिए ਕਿ 100 ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक पेड़ को ਇੱਕ ਭੇਡ ਔਰ ਲੱਭਣ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਚਰਵਾਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਚਰਵਾਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਖੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੇਡ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਈ। ਬੋਲੀਏ। नहीं ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਰਵਾਹਾ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੇਡ ਹੀ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। अगर यीशु मसीह ने उदाहरण दी है कि भेड़ खोई है, पर याद रखे मैं एक गल तुहानू दसना चाहना हाँ, बेशक असी चरवाहे हाँ पर यीशु की नजर च असी भेड़ ही हाँ। सारे बोलांगे हालेलुया हालेलुया। जिद्दां असी चाहते हैं ना कि लोग कलीसिया साडी गल नूं सुन, ते यीशु चाहता है चरवाहे मेरी गल नूं सुन। हालेलुया। समझ लग रही है ना? सिंपल ही है ना, ज्यादातर मैं डीप जाने ठीक है। असि सिख की रहे अज असी चरवाहा ते पेड़ बोलिए बोलिए चरवाहा ते पेड़ चरवाहा ते भेड़। अच्छा मैनूं दसो ज्यादा लड़ाई भेडां भेडां विच हुंदी है जां चरवाहा चरवाहां दे विच हुंदी है? पेड़ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚਰਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ ਭੇਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਰਵਾਹੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਵਾਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਰਗੇਟ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਭੇਡ। ਟਾਰਗੇਟ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਲੜਦੇ ਕੌਣ? ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਚਨ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਚਰਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੂਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਚਰਵਾਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੇਡਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਰਵਾਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਉਤਪਤੀ 13 ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी ਅਬਰਾਹਾਮ ਔਰ ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ और गाय बैल ਔਰ ਉਹਦੇ ਔਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ
कि चरवाहों में झगड़ा हुआ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਝਗੜਾ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਟੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਲੂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਲੂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਗੂੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀਏ ਚਰਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੂਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਰਵਾਹੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਚਰਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਰਵਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੂਤ ਦੇ ਚਰਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਵਾਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੈਪਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਹੁਣ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਭੇਡਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 34 ਦੇ 7 ਵਚਨ ਪੜੋ हाँ जी क्योंकि इज़राइल के घराने में से 34 इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो यही तो सुनना नहीं चरवाहे कभी भी सुनना पसंद नहीं करते भेटा ते चोर लाउंदे सुनदियां नहीं भेटा कभी कल्ले बैठ के सुनियो कभी आप सुनते सारे बोलेंगे हालेलुया हालेलुया ये नहीं लिखा है भेड़ो यहोवा के कलाम को सुनो किनको कहा चरवाहों ये चरवाहो यहोवा दे वचन नू यहोवा दे वचन नू सुनोगे ते तुसी सुनाओगे जे तुसी सुनोगे नहीं ते फिर अज ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਨਾ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਵੀ ਖਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਨਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਇਹ ਚਰਵਾਹੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਰਵਾਹੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਝਗੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੇਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਮੀਆ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। आगे यहोवा ये कहता है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से जो कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें से मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूलेंगी फलेंगी। यहोवा कहता है मुझे खुद उनका चरवाहा बनना पड़ेगा क्योंकि चरवाहों तुमने मेरी आज्ञा का पालन, तुमने तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। और वो मैं जो चाहता था कि चरवाहे बनकर तुम ये करो, उन्होंने नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह अच्छा और सच्चा चरवाहा बन के इस दुनिया पे आया। क्योंकि यीशु तो पहला भी बड़े चरवाहे सी तो यीशु तो बाद भी बड़े चरवाहे हैं। जिदा पहले उन्होंने यहोवा के वचन को सुनिया ते अज भी यहोवा के वचन को सुने, इसलिए यीशु दोबारा फिर आना पैना। सारे बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। सुने ध्यान से। पहली बात है कि चरवाहे आपस में झगड़ते हैं। क्यों झगड़ते हैं? क्योंकि वो यहोवा की आवाज को। दूसरी बात, चरवाहे आज्ञा पालन नहीं करते। जिस दिन मूसा को ये जिम्मेदारी दी गई कि तूने मेरी कौम को मिस्र से निकाल कर कनान में लेकर जाना है। कहां लेकर जाना जी? कनान में। मूसा को एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तुम मिस्र से निकल रहे हो, मिस्र के काम तुम्हारे साथ ना जाए, मिस्र की परंपराएं, मिस्र की रीति रिवाज तुम्हारे साथ ना जाए। और जब तुम कनान में जाओ तो मिस्र जैसे काम तुम कनान में ना करना और ना कनान के जैसे काम तुम करना। तुम्हें करेंगे क्या? सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यदि इन बातों को आपको पढ़ना है, लेविया दी पुस्तक 18 अध्याय में इन सारी गल्लां लिखियां हैं। थोड़ा पढ़ो जल्दी जी, पास पढ़ दीजिए। लेविया 18 अध्याय पहले वचन को। हाँ जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह के मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस्राएलियों से कह मैं तुम्हारा यहोवा योही हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार, मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे, ना करना, ये काम ना करना। और कनान देश के कामों के अनुसार भी, और कनान के देश के लोगों के कामों के अनुसार भी तुमने नहीं करने। जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ, जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मैं तुम्हें विधियां दूंगा, मैं तुम्हें नियम दूंगा, मैं तुम्हें कानून दूंगा, तुम्हें उन्हें ही फॉलो करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुने, ध्यान से सुने। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मूसा को मिली है क्योंकि मूसा चरवाहा है। बनी इस्राएल कौम का वो चरवाहा है, बहुत सारी भीड़ का वो चरवाहा है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मूसा ये बातें उनको नहीं बताएगा तो हिसाब किससे? मूसा से लिया जाएगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, जर्मिया 10वें अध्याय में चलेंगे। जर्मिया 10 अध्याय पहले वचन से। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घरानों, हे इस्राएल के घरानों, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है, उसे सुनो, उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो। कौन सी चाल?
अन्य जातियों की चाल, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, तुम्हें संसार से अलग कर दिया गया है। अब तुम संसार की परंपराओं को अपनी मसीहत में नहीं ला सकते, अपने रीति रिवाज जो संसार के हैं अपनी मसीहत में नहीं ला सकते। कभी कभी कहते कि कोई नहीं, थोड़ा बहुत चल जाता है, थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत नहीं चलता। किल चाहे एडा बड़ा ते किल चाहे एडा है, हवा निकलनी है। तो फिर तुहानू पेंशन वाले के कोल जाना पैना, तो उन्हें ये नहीं कहना बड़ा किल सी छोटा किल, उन्हें पेंशन लाना है तो हवा रुक जानी है। गुनाह छोटा है, गुनाह गुनाही है, और पाप की मजदूरी। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अन्य जातियों की चाल, कारण क्योंकि हमें अलग कर दिया गया है, हमें अलग कर अब ये कहा तुम भेड़ हो, और भेड़ों के ऊपर नियुक्त किए, उनको कहा तुम चरवाहे हो। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा पौसो जी। नाम के समान आकाश के चिन्हों से विसीमित हो। बस आकाश के चिन्ह, आकाश में क्या नजर आते हैं? बोलिए बोलिए। ये स्टार रात को क्या करते हैं? बोलिए, चमकते हैं ना, यानी कि रोशनी देते हैं। तो ये इसको, इस स्टार को रोशनी वहां देनी है जहां अंधेरा है। ये अब विश्वासियों के घर में होना चाहिए, क्योंकि अंधेरा कहाँ है? अंधेरा विश्वासी के घर में ना, अब विश्वासी के घर में। तो बोलिए कहा, तो ये स्टार लगे कहाँ है? ये तो विश्वासी के घर में लगे हुए हैं। विश्वासी तो खुद स्टार है, क्योंकि दानियल 12:3 के अंदर लिखा है, धर्मी जन कैसे चमकेंगे। हम तो खुद, हमें तो जरूरत नहीं है इसकी। आपको पता ही क्या है? अमोस 5:25 और 26 वचन। अमोस की किताब 5:26 और 25 वचन, जल्दी से पढ़े, देख लीजिए। भेड़े भी देख ले, भेड़ों को तो जो सिखाएंगे वो सीखेंगी वो। हाँ जी, पढ़े जी। अमोस की किताब 5 उसका 25 और 26 वचन। हे इस्राएल के घराने, सुने सुने ध्यान से, हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष की, तुम जंगल में 40 वर्ष पशु बलि और मेल बलि, अन्य बलि का क्या मुझी को चढ़ाते क्या रहे? मुझे चढ़ाते थे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू, तुम राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरणपीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। किसका तारा? तो बाइबल तो बताती है ये तारा तो है बाइबल के अंदर, पर ये किसका तारा है? मोलक देवता का। हम तो बड़ी शान से गाते हैं अपने घरों में। बताना किसने है? बताना किसने है? बता ही नहीं सकते, बता इसलिए नहीं सकते, लोग नाराज हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कहेंगे नहीं बाइबल में लिखा है, अगर आप गिनतियां 24:17 वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा याकूब के घराने से एक तारा उदय होगा। किसके घराने से? कहां उदय होगा? और वो तारा कौन है? आगे जब पढ़ेंगे ना, तो वो तारे की तस्वीर यीशु में तब्दील हो जाएगी। आमीन बोलेंगे? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, यिर्मयाह कहता है अन्य जातियों की चाल, ये चिन्ह मसीही चिन्ह नहीं है, ये अन्य जातियों के चिन्ह है। इन चीजों से सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो इतनी खुशी में चले जाएं। कई लोगों ने तो इसको समेट कर रख देना है और 24 रात को फेल लगा देना है, और लोग बड़े खुश होते हैं, ओ ईसाई मसीहों का घर है। ना ना ना, और वो आप खुश होते हैं, पर वो एक आत्मिक ऐसी शक्ति है, वो खुश नहीं होती। वो तो चाहती है कि तुम इन्हीं बातों में लगे रहो और तुम्हारा सच्चाई की ओर ध्यान ही ना जाए।
जरमिया 10 है कि अगले वचन के अंदर चलेंगे, दूसरे वचन में, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, अन्य जातियों की चाल मत, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित ना हो, आकाश के चिन्हों से विस्मत हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, उनसे डरते हैं, उनसे घबराते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। देशों के लोगों की रीतियां निकम्मी है। मूर्त तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है। फिर क्या करते हैं, फिर वो जंगल में जाते हैं, वहां से पेड़ काटते हैं, फिर उस पेड़ को सजाते हैं और फिर हम कहते हैं ये क्या है जी, क्रिसमस ट्री। क्या है जी? है बाइबल में, है अन्य जातियों के लिए, लेकिन आज ये सारी चीजें कहां आ गई? मसीहों के घरों में। पहले बात थी, अब कहां आ गई? घरों में आ गई। हालेलुया। जो चीजें बाइबल में है ही नहीं, अगर क्योंकि हमने पहले पढ़ा है, तुम मिस्र से निकल रहे हो, मिस्र जैसे काम, तुम कनान में जाओगे, कनान जैसे भी काम। अब मुझे और आपको संसार से अलग किया है, संसार जैसे काम हम भी ना करें। आमीन बोलेंगे? आमीन। हालेलुया। आगे चले पास्टर जी, थोड़ा सा और आगे। लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं, लोग उसे सोने चांदी से मरते हैं और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर ठीक तो उसके दृढ़ करते हैं, उसे तैयार करते हैं कि वह हिलजुल न सके, वो हिलजुल ना सके। वह ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है। कैसे? ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान। सेंटा क्लॉज पुतला ही तो होता है, वो क्या है? वो आता है। आज लोगों का ध्यान मसीह से हट गया। इंतजार करते हमारे, हम स्थान में रहते हैं, हमारे कहते भाई साहब सेंटा कब आएगा? मैं कहा सेंटा नहीं आएगा, यीशु ही आएगा। हालेलुया। मुझे नहीं लगता आपको ये कोई बातें बताएगा, पर मैं दोबारा आऊं या ना आऊं, पर मैं आपको सच्चाई बता के जरूर जाऊंगा। मुझे कोई लालच नहीं है, रोटी खाओ ना खाओ, नहीं तो होटल बड़े पर वहां खा लूंगा जाकर, पर मुझे आज चरवाहों से भी बात करनी है। हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो, इन रीतियों को हटाओ अपने लोगों के घरों से। हटेगी तो तब जब हम हटाएंगे, और जब हम नहीं हटाएंगे तो लोगों को भी हम कह नहीं सकते। अंधा अंधे को मारेंगे नहीं दिखा सकते। एक दिन अंधे के आगे से यीशु निकला, क्या अंधे ने देखा होगा? उसको कैसे पता चला कोई जा रहा है? क्योंकि शोर मचा है। जब मेरा यीशु आता है, शोर मच जाता है। बस कोई नहीं, डरे मत आप आशीष पाएंगे आज के वचन से। आमीन बोलेंगे? आमीन। क्योंकि वचन के अंदर लिखा, सत्य को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई तुम्हें, अंधे को पता चल गया है, एक भीड़ जा रही है, भीड़ में से कोई खास जा रहा है। बंदे ने पूछा कौन जा रहा है, लोगों ने उसे चुप कराया और कहा यीशु नासरी जा रहा है। आमीन। कौन जा रहा है? बोलो कौन जा रहा है? लोगों ने अंधे को कहा, अंधे ने सुना, उसने ये नहीं कहा यीशु नासरी, उसने कहा दाऊद की संतान। जो देखने वाले हैं उनके लिए यीशु नासरी है, जो नहीं देखते उनके लिए वो दाऊद की संतान है। आज भी जो देख रहे हैं ना, उनको वो नजर ही नहीं आ रहा जो है, और जो नहीं देखते उसको वो नजर आ रहा है। आमीन बोलेंगे? अंधा कहता है दाऊद की संतान, लोग कहते हैं यीशु नासरी। अब यीशु नासरी और दाऊद की संतान में बहुत अंतर है, क्योंकि नासरी जब कहते थे मजाक उड़ाते थे, लेकिन दाऊद की संतान जब कहते थे अधिकार जताते थे। और जब यीशु ने सुना मुझे किसी ने पुकारा, यीशु रुक गया और कहा उसे मेरे पास लाओ। और यीशु ने पूछा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उसने क्या कहा? हे अदनोई, हे मास्टर, मैं देखना चाहता हूं। और मेरे यीशु ने क्या कहा? जैसे तू चाहता है तेरे साथ। क्या देखना चाहता है? मैं देखना चाहता हूं दाऊद की संतान को।
मैं देखना चाहता हूं जो मसाया आने वाला था, और जो यीशु को देखना चाहते हैं चाहे वो अंधे भी क्यों नहीं हो, मेरा यीशु उनकी आंखों को खोल देता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तो अंधा था ना, कहता मैं देखना चाहता हूं। एक आंखों वाला है, वो कहता मेरा भी यीशु को नाम है जकई। क्या है, क्या लिखा उसके बारे में? बोलो बोलो। मैं देखना चाहता हूं। अंधा जो नहीं देखता यीशु को पुकारता है, और जो देखता है मेरा यीशु से पुकारता है। झक्की नीचे आजा, देख ले मुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चरवाहो क्या सिखा रहे हो? आमीन बोलेंगे? हालेलुया। वो तो ककड़ी के खेत में खड़े हुए बुद्ध के समान है। आज लोगों का सारा ध्यान क्रिसमस ट्री के ऊपर चला गया है। आज मसीहों का ध्यान घर में तारा नहीं लगा तो मसीही नहीं है। आज घर के अंदर बच्चों को भी सेंटा बनाना शुरू कर दिया। ये चीजें बाइबल की चीजें नहीं है। अगर घरों में है निकाल के बाहर फेंक दो। मैं विश्वास करता हूं आपको आशीष मिलेगी। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। जो बाइबल में लिखा है आपके लिए यीशु का जन्म उस दिन है जिस दिन आपको पीड़ा लगेगी, जब आप संसार से कट कर दिए जाएंगे, जब आपके अपने आप को छोड़ देंगे, उस दिन पीड़ा उठेगी। याद रख लेना, उस दिन यीशु पैदा हो रहा है। उस दिन यीशु, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु को बाहर पैदा नहीं करना, अब यीशु को अंदर पैदा करना। आप चले तो लोग कहें यीशु जा रहा है, आप बैठे तो लोग कहें यीशु बैठा है, आप बोले तो लोग कहें यीशु बोल रहा है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। एक दो वचन मैं और आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीष पाएंगे। और एक वचन और हम जल्दी से पढ़ेंगे। लूका 2 अध्याय 8 वचन। लूका 2 अध्याय 8 वचन। और उस देश में कितने गडरिये थे, उस देश में कितने शेफर्ड यानी कितने चरवाहे थे, राधे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। उनके पास एक दूत स्वर्ग से उतरकर उनके पास खड़ा हो गया। और प्रभु का तेज और एक बड़ी रोशनी शकीना बड़ा जलाल उनके सामने आकर ठहर गया, और वो डर गया। और वो बहुत डर गए। डर गया। ध्यान से सुने। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। चरवाहो यीशु के पास आ जाओ। चरवाहो किनके पास आ जाओ? भेड़ के पास जाने से पहले चरवाहे की ड्यूटी है वो यीशु के पास है। आमीन बोलेंगे? चरवाहा उठता है सुबह, यीशु के पास आता है। चरवाहा घर से बाहर जाकर वापस आता है, यीशु के पास आ जाए। अब क्या सुनो, दाऊद की संतान पैदा हो रही है, तो बड़े बड़े राजाओं को खबर देनी चाहिए ना। बड़े बड़े लोगों को वो खबर देकर यीशु के पास बुलाना चाहिए। लेकिन बुलाया किसको है? चरवाहों को बुलाया है। ये इसलिए बुलाया है, एक सच्चा चरवाहा आ गया है, एक अच्छा चरवाहा आ गया है, एक वो चरवाहा आ गया है जो हम सब के लिए अपने प्राण देगा। अब चरवाहे तो बड़े बड़े हैं ना, जो भेड़ों की रक्षा करते बड़े होंगे।
एक छोटे चरवाहे के पास जा रहे हैं। किसके पास? क्या वो स्वीकार करेंगे ये हमारा अच्छा चरवाहा है? जब स्वर्गदूत आता है वो चरवाहों को यीशु के पास भेजता है, क्योंकि चरवाहे वो काम करेंगे जो वहां के वो लोग नहीं कर सकते जो बड़े नाम रखने वाले थे। क्योंकि चरवाहे एक स्थान में नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं। और जब यीशु की खुशखबरी को वो ले लेंगे, जब वो यीशु को देख लेंगे और यीशु की खुशखबरी को दूर दूर लेकर जाना शुरू हो जाएंगे। आमीन बोलेंगे? आमीन। हम तो चरवाहे अपने झुंड के गए। कभी कभी झुंड को छोड़ना पड़ता है, कभी कभी झुंड को, पर पुलपट ऐसी किंगडम है ना, हम छोड़ नहीं चाहते, ऐसी जाम रहते हैं ना। पर चरवाहे को याद रखना है, भेड़े किसकी है? भेड़े यीशु की है। भेड़े किसकी है? अच्छा, बाइबल में लिखा है कि मैं अपनी जान चरवाहों के लिए देता हूं। किसके लिए? बोलिए बोलिए। भेड़ों के लिए मैं अपने प्राण देता हूं। ये नहीं लिखा कि चरवाहे मेरी आवाज सुनेगी, लिखा है भेड़े मेरी आवाज सुनेगी। चरवाहे तो कभी यहोवा की आवाज सुन ही नहीं सकते। ये तो वचन कहता, मैं तो कहता नहीं। कौन सुन सकती है? भेड़। इसलिए चरवाहे को क्या बनना उसकी आवाज सुनने के लिए? भेड़ बनना है। और मैं विश्वास करता हूं जब हम भेड़ बन जाएंगे, हम यहोवा की आवाज को सुन लेंगे। आमीन बोलेंगे? आमीन। यीशु मसीह के जन्मदिन के अंदर यही तो पैसेज पढ़ा जाता है। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये चरवाहे आम चरवाहे नहीं है, ये बड़े खास चरवाहे हैं, जिनके पास यीशु का संदेश आया, जिनके पास स्वर्गदूत खुद इस खुशी की खबर को लेकर आया। ये आम नहीं है, ये लेवी घराने के चरवाहे हैं। इनकी ड्यूटी खास ड्यूटी है, क्योंकि ये वो चरवाहे हैं जो पसह के मेमने को तैयार करके यरूशलेम के मंदिर में लाते हैं। आगे बोलेंगे? आमीन। आपको पता नहीं आज कौन पैदा हो गया है? पसह का मेमना पैदा हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। कुर्बानी से, उसके पहले बहते हुए लहू से मेरे और आपके पाप धुल जाएंगे। और उनको, उन चरवाहों को एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं है। स्वर्गदूत ने तो ये कहा बैतलहम में, तो बैतलहम तो बहुत बड़ा है। अगर आप लोग गए तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चरवाहे उसी भेड़शाला से अपनी भेड़ों को लेकर आए हैं। अब इनको वहां पहुंचना मुश्किल नहीं है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। प्रियजनों, वचन के अंदर लिखा है, जैसे ही चरवाहे गए वहां, एक वचन और पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि जल्दी से एक वचन पढ़े, 12 वचन पढ़े, लूका 2:12। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे यह वह प्रसन्न है, शांति हो। अब क्या तो सुने, पहले स्वर्गदूत आया, चरवाहों को वचन सुनाया, चरवाहों ने वचन सुना, उसके बाद वो भजन कीर्तन करने लगे। हम क्या करते हैं? हम पहले गीत भजन गाते हैं और फिर वचन में जाते हैं। आगे बोलेंगे? सुनिए ध्यान से। तो वर्शिपर बहुत अच्छे हैं कि वो वचन सुन रहे हैं। और मैंने पंजाब के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्शिपर जो है, बड़े नाम रखने वाले, वो तो कभी वचन सुनते नहीं देखा। उन्होंने अपना प्रोग्राम किया। मैं कहता हूं ऐसे वर्शिपर को पहले बिठाओ, उसको वचन सुनो और उसके बाद गाओ भी। अगर स्वर्ग के तरीके से चलना है तो पहले स्वर्गदूत आता है, चुनावों को वचन देता है और उसके बाद भजन कीर्तन करता है।
हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। आप तो पास्टर साहब आपको तो पता ही है, और ये भाग नहीं सकते हैं, ये भाग नहीं सकते, वचन सुनेंगे। आमिर बोलेंगे। क्योंकि अभी काफी दिनों से मेरी कन्वेंशन हो रही है, मैंने देखा है अच्छे से बड़े बड़े अच्छे नाम के वर्शिपर आए, वो कहते हैं हमारा आगे भी प्रोग्राम ही कर लो फिर तुसी साडा क्या प्रोग्राम है जी। वो जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया है पहले वो काम करो, वचन सुनो बैठकर। आमिर बोलेंगे। मैं कहता हूँ पेमेंट ना दो उनको, कहे नहीं लोग अपने यस हालेलुया बोलिए। आप अपनी दुआओं में मांगते नहीं है यहोवा मेरे ही कलीसिया के अंदर एक अच्छा साजी हो, एक अच्छा बजाने वाला हो। जब आपको पता है लेवी कबीले के जो लोग थे, जब 70 एडी के अंदर मंदिर को ढा दिया और लेवी जो बजाने वाले थे ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काटी कि हम गैरों के लिए साज नहीं बजाएंगे। उनको पता था अन्य जाति हमसे दूसरे मबूदों के लिए साज कहेंगे बजाओ, हम अपने हाथ अपनी यहोवा की सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। तो सारी जनता उसको बोलो बुरा लगा कोई मैं अगली बार आप मत बुला लो, कोई अच्छी बात है, क्योंकि मैं आता हूँ तो मुझे खराब बोल के जाना है, दोबारा मिलूं या ना मिलूं। आमीन बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। सुनिए चरवाहे यीशु के पास स्वर्गदूत अपना काम कर रहे हैं, चरवाहे अपना काम कर रहे हैं, मरियम अपना काम कर रहे हैं, यूसुफ अपना काम कर रहा, मेरा यीशु एक वस्त्र में लिपटा हुआ। किसमें लिपटा है? बोलिए। क्योंकि जिस दिन पसाख का मेमना पैदा हो जाता था और उसको चेक कर लिया जाता था, उसके ऊपर कोई झुरी धाग नहीं है, उसी समय उसे कपड़े में लपेट दिया जाता था। और वो कपड़ा भी आम कपड़ा नहीं, महाजाजक का वस्त्र होता है। और आज मेरा यीशु महाजाजक के वस्त्र में इसलिए है, एक दिन उसने महाजाजक बनना है। हालेलुया हालेलुया। चरवाहे उसे दंडवत करते हैं, क्योंकि चरवाहों को पता चल गया है हम इसके आगे चरवाहे नहीं है, इसके आगे हम भेड़ हैं, ये हमारा चरवाहा। आपको पता है लिखा है खुशी खुशी वापस आ गए। कैसे आए? ऐसे हो नहीं सकता यीशु के पास आकर और जब वापस आए तो दुखी आए। कैसे आएंगे? क्योंकि कहां से आ रहे हैं? बोलिए खुशी से। खुशी तो यीशु के पास होकर आ रहे हैं। आप यीशु के पास होकर जाएंगे, कभी दुखी नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पहले आना पड़ेगा, चरवाहों की तरह आना पड़ेगा। उस दिन तो स्वर्गदूतों ने चरवाहों को कहा ओ यीशु के पास जाओ। आज एक छोटा सा खादम आपको कहता है यीशु के पास आओ। जब आप यीशु के पास आएंगे ना, तो मैं विश्वास करता हूं आपके गम, आपकी उदासियां खुशी में बदल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु खुशी के माहौल को लेकर आया। स्वर्ग खुशियां मना रहा है, जमीन के ऊपर चरवाहे खुशियां मना रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। जो इंतजार में थे वो सोए हुए थे, और जो इंतजार में नहीं थे वो जाग रहे थे। हालेलुया। आज भी ऐसे ही हमें लगता है हम तो पक्के ही है, टिकट हमारे पास पक्की, हम तो जाएंगे, हमें नहीं कोई रोक सकता, हम ही रह जाएंगे। मैं और आप अपनी जिंदगी में देखें, क्या हम उस चरवाहे के पास हैं? जिस चरवाहे के पास वो चरवाहे गए हैं, क्योंकि ये इसलिए अच्छे चरवाहे बन गए क्योंकि इन्होंने यहोवा के स्वर्गदूत की आवाज को सुन लिया। वो तो चाहता था कि चरवाहे मेरी आवाज को, वो टाइम पर बताता रहा, बोलता रहा, चरवाहो मेरी बात को
सुनो, मेरी बात को सुनो। लेकिन जब समय ऐसा आया, चरवाहे वो पकड़े जो लेवी घराने के थे, जो उस भेड़शाला के थे, जिस भेड़शाला में से भेड़ों को जाकर यरूशलेम के मंदिर के अंदर कुर्बान किया जाता है, क्योंकि एक दिन मेरे यीशु ने भी यरूशलेम में जाकर कुर्बान होगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आपका क्रिसमस वो क्रिसमस है जिस दिन आपने अपने अंदर यीशु को पैदा कर दिया। अगर यीशु पैदा नहीं है, अगर पैदा ही क्रिसमस नहीं है, पैदा ही स्टार है या पैदा ही सेंटा क्लॉथ है, यीशु वहां कभी नहीं आता। अगर आप इतिहास में जाएंगे ना, तो जो आज यहूदी लोग यीशु के पास आ रहे हैं ना, वो मेरी और आपकी मसीहत के ऊपर हंसते हैं। वो कहते हैं ये कैसी मसीहत है इनकी, क्योंकि जिस मसीहा की वो, क्योंकि जब स्वर्गदूत चरवाहों के पास आए, ये नहीं कहा कि यीशु पैदा हुआ है, क्या कहा? मसीह पैदा हुआ है, क्योंकि चरवाहे मसीहा की इंतजार में थे। यीशु तो टाइटल है, यशुआ जो टाइटल है कि यहोवा उद्धार करता, यहोवा उद्धार करता। और वो मेरा ही आपका उद्धार करने नहीं आया, वो पूरे संसार का उद्धार करने आया। वो जो उसकी आवाज को सुनता है और सुनकर उसके पीछे आता है। वो किसी धर्म मजहब को नहीं देखता, वो किसी जाति या किसी रिलेशनशिप को नहीं देखता। वो तो चाहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम जैसे भी हो मेरे पास आ जाओ। अगर चरवाहों को पता चल जाता कि मसीहा आ गया है, तो मैं विश्वास करता हूं सारे चरवाहे निकलकर यीशु के पास आ जाते। लेकिन वो तो कुछ ही चरवाहों को बताया गया था जो इंतजार में थे, जो। और एक दिन मेरा यीशु जाने से पहले ये बात कहकर गया था कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दे, और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें साथ लेकर। वही दूतों ने यीशु के बारे में ये कहा, हे गलीलीपुर को जिसे तुम ऊपर जाते देख रहे हो, वही एक दिन स्वर्गदूतों से ज्यादा यीशु को कोई जानता नहीं। जैसे चरवाहों ने उनकी बातों को माना, तो हमें भी प्रेरितों के काम 1 7 8 9 वचन को मानना है कि जैसे वो क्या है वो वापस आएगा। अगर वो वापस आने वाला है, तो क्या मैं और आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो अपना जीवन हम अपने यहोवा के वचन के अनुसार जिए। मैं विश्वास करता हूँ हम उसके साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहेगा। फिर हमें यहाँ की चरवाहों की जरूरत नहीं बनेगी, यहाँ के चरवाहे की भेड़े बन जाएगी। हम तो पहले ही भेड़े, और फिर एक ही झुंड होगा, एक ही चरवाहा होगा। आगे बोलेंगे भाई, हम सब खड़े हो जाएंगे। थोड़ा समय मैं चाहता हूँ हम सब खड़े हो जाए, क्योंकि काफी समय से आप